अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू जा रही है। ओके। अच्छा, हम लोगों ने कल जो भी किया था, मुझे थोड़ा सा कौन रिकैप देगा? जी ज़ैनब, सुमेरा। लैंग्वेजेस जी, टाइप्स ऑफ अरेबिक लैंग्वेजेस बताई थी आपने। और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था नए वर्ड का। इसके अलावा वैसे मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए थे, रिवाइज भी करवाए थे, वो तो आपने पहले पढ़ाए हुए हैं। हम्म। और क्या क्या चीजें इसमें आती हैं, जो तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अरेबिक के। और क्लियर किया था कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इसका आपने। ये रफा रफा फता और उसका कसरा, तो ये चीजें बताई थी। जी, तो क्लैरिटी हो गई है कि हमने स्टेटस जो है वो कैसे रिकॉग्नाइज करना है, राइट? अच्छा, जी जी। yesterday we have learned that what is the word, and we have learned that how many kinds of Arabic, and how many kinds of word, and then we have checked that how many words ism, fail, and harf. With the help of ism, fail, and harf, there are the sentence making in Arabic. So we will learn from that. There are three kinds of words in Arabic. Ism. What is the ism? The name of a person, place, thing, idea, adjective, adverb, and more. What is fail? A word that has a tense, past, present, or future, like where the time gets stuck. Where is in between the time we can recognize that this is the fail, this is a verb, where action is going on, happening. All right. And harf is a word that makes no sense unless another word comes after it. Let's do some exercise. Identify whether the words in the table below are isms, fail, or harf. So, who will tell me what is it? Yes. इसमें टेबल क्या है? इसम, फेल और हर्फ? इसमें इसम ऑल राइट, इट्स इसम. व्हाट इज कैट? इसम इसम परफेक्ट, गुड जॉब. व्हाट इज इन? हर्फ हर्फ ओके, इट्स हर्फ. ऑल राइट, व्हाट इज डैलस? ऑल्सो इसम इट्स इसम इट्स इसम because it's a name, right? All right, what's off? हर्फ हर्फ It's harf. What's loudly? फेल लाउडली इसम इसम Loudly is fail. नहीं 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 What we have discussed yesterday, that Lee's words are adverb. Do you remember that? जी So adverbs and adjectives and other things, all of the things are included in ism or fail. इसम Yes, so it is ism. इसम All right, jumps. फेल Good job. It's fail because jumps means someone is jumping or something like that. Peace. इसम इसम Exactly. Why it is ism? Because it's an idea, as we have discussed earlier. What's tall? इसम ये भी Ism. From? हर्फ हर्फ It's her. Slept? फेल Fail. फेल Soundly? इसम इसम
Exactly, it's ism. On हर her. Freedom, freedom is ism. it's an idea, so that it's ism. Red, Ism. a, हर yes. Makkah, is ism. mother, is Ism. at, her हर students, ism. is ism. Roller coaster, Ism. ism. Cake, is typing. fail Fail. See, typing can be ism and fail both. How? Can you tell me? Like if it is used like an idea, तो फिर हम उसको इसम कहेंगे, या जैसे I like typing, और Exactly. अगर she Sure. is typing होगा तो fail. Yes. If I would say I'm typing or I was typing, so it means time is mentioning here. So here typing is the verb. But if I would say, and I like in the form of idea, like I like typing or he loved typing, so it is an idea. So here it is an ism. Good job. House, is country, is Ism. America, is Ism. smiles. fail इसम इसम और Exactly. फेल दोनों हो सकते हैं. Good job. Sorry. This is fail. All right. So I hope you guys understood that how can we discriminate in between the ism, fail, and harf. Right now, I'm going to write some sentences so we can easily understand that how can we discriminate in between the ism, fail, and harf. I will tell you some sentences. Like for instance, wait a minute. Okay, if I would write the book is on the table. So what can I say? Like where is the ism, where is the fail, and where is the harf? Yes, Book and table ism. yes. On is her. Book is ism and table is ism. Is, Now the is on the on. these are left. So how can we say The that? on Yeah, the on the तो हर और हर का is जो है वो फेल. the is also like हर the book is all like you can say whole the book is ism. You can say, right? Because we okay. used to say the book, the this and that, so all of the things are included, but specifically if we have to see the sentences, we need to see check the where is the ism and where is the harf. Is harf, on is harf, right? इस फेल नहीं होगा टीचर, क्योंकि ये तो हमें अभी का बता रहा है ना. Is there any action going on? एक्शन तो नहीं, बट इससे टाइम का पता चल रहा है ना कि अभी पढ़ी हुई है किताब. No, the book is on the table, that's it. There is no time mentioning that it is placed on the table, it was placed on the table, or it would be placed on the table. ओके, इंग्लिश में हम इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं ना, वर्ब टू बी, वर्ब बी और वर्ब टू बी, तो लेकिन यहाँ पे ये हर्फ Helping, है. देखिए, helping verb is nothing, no such thing in Arabic, right? हमें पता है कि जो इसम और फेल नहीं है वो हर्फ है, ठीक. ठीक है, और जो हर्फ और फेल नहीं है वो इसम है. There is no such thing kind of helping verb or something like that. बस हमें ये पता है, this is all we know that there is no such
action happening in this sentence. That's why we can't able to recognize what's going on here. Just this is showing that there is a book and like also ये भी नहीं कहा गया कि ये यहाँ पर एक book रखी है का मतलब अभी रखी है. The book is on the table, that's it. Book अरेबिक मेज के पर है. अंदर इसको हम बुक मेज पर है. तो अब वो कब से है, क्यों है, किस टाइम है, there is nothing, no such thing to mention here. Okay. Now next word we can say. Wait a minute. I just want you to clear your mind. That's why we are practicing in English sentences. I see a beautiful girl. ब्यूटीफुल गर्ल नाउन सी Yes. वो Beautiful is ism. यस What is C? सी इज अ फेल Exactly. C is fail. Beautiful is ism. You're right. And girl is ism. Because beautiful is adjective. A blue car, a beautiful girl. All right. यस उसके बाद हम मजीद कुछ sentences कर लेते हैं. The boy went to the school. The boy went to the school. Take out the ism, fa'il and harf. Here A Boy. is harf. And also one more thing. I see a beautiful girl. What is I here? नाउन Exactly. It is noun. All right. The boy went to the school. What is the boy? द बॉय इसम द स्कूल इसम टू हर एंड वेंट इज फेल Okay. To is harf and went is fa'il. So you guys have an idea, or can we do some more practice? आई थिंक वी शुड प्रोसीड यू कैन आस्क The girl is sitting on the chair. Now tell me, what is the girl? Sumera, you tell. Girl is ism. Yes, Sumaira. What do you think? Can you जी tell? Girl is जी girl ism okay. What is is? is harf Okay. sitting fail All right. on harf Right. chair ism. Good job. We need to fix the things like sitting. Like we have to keep it in mind that if there would be an ing word, so we need to check the sentence that either it would be an idea in the sentence, or either it would be a word happening, something, some action is happening. So we have to get the clarity regarding that. Okay. Now the cat jumped under the wall, over the wall, sorry. Okay. So what is cat? Cat is ism. Ism. Jumped. Fail. Over. Over is her. Wall. All is ism. Okay, so I hope you guys got an idea. Let's move on. We have learned
in yesterday's class that there is ism has the 4 properties, and we have discussed about the status, gender, name, number, and type. Status is all about rafa, nasab, and jar. Can someone tell me about what is the discrimination between rafa, nasab, and jar? रफा जबर को कहते हैं, नस्ब जो है नहीं, रफा जबर को नहीं कहते, रफा जो है पेश को कहते हैं, पेश को, राइट? नस्ब जो है जबर को कहते हैं और जर जो है जेर को कहते Exactly. Do you remember guys about the Muslimun, Musliman, Muslimin वाला चार्ट जो है वो याद है आप लोगों को? हैं। जी Can you repeat? क्या है वो? मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, स्टार्टिंग से करें, मुस्लिमुन, मुस्लिम, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। ओके, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमुन, और इसके फिर इनके डुअल और वो प्लूरल बताऊं? जी कोशिश करें अगर याद है तो, वरना फिर मैं इसको निकालती हूँ, मन, I'll take it out. मुस्लिमन, मुस्लिमन का मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमिन और मुस्लिमन तो सेम है। मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिमैनी पता नहीं प्लूरल था, अब ये ध्यान में नहीं आ रहा कि प्लूरल था या डुअल था। मुस्लिमैनी, ये देखें, ये हमारे पास है रफा, नसब एंड जर, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन. Then we have dual, Muslimani, Muslimaini, Muslimaini. Then we have plural, Muslimuna, Muslimina, Muslimina. ये है मुजक्कर के लिए मीन्स मैस्कुलिन. फेमिनिन के लिए क्या है? मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन. अंडरस्टूड? जी, समझ आया? जी अब यहाँ इन्होंने जी पढ़ा था वो। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ दिया हुआ है. क्या फर्क है कॉमन और प्रॉपर नाउन में? कैन यू टेल मी इन दीज 2 चार्ट्स व्हाट इज द डिफरेंस? अल लगा हुआ है प्रॉपर। एग्जैक्टली. और अल जब लगा होता है तो हम क्या पढ़ते हैं? मुस्लिमू पढ़ते हैं, मुस्लिमुन नहीं पढ़ते. ठीक है, जब अल लग जाता है तो तनवीन हट जाती है. ये बात तो पता है ना आप लोगों को? जी जी ठीक है, तो ये हमने जो है ना इस चीज का ध्यान रखना है कि रफा, नसब और जर में अभी हम स्टेटस कर रहे हैं तो वी शुड नो. रफा में अब हम आ जाते हैं कि रफा में क्या है? डूअर. सब्जेक्ट कौन होता है? जो हमें पता है कि सब्जेक्ट कौन होता है. अभी इसके लिए भी मैं सेंटेंसेस आप लोगों को बताती हूँ कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का हमें अगर पता है तो वी शुड नो दैट व्हाट वुड बी द एंडिंग स्टेटस. हम जो लास्ट लेटर होता है ना, उस लेटर का जो स्टेटस है वो हमें रफा, नसब और जर से पता चलता है. With the help of that, we come to know who is the subject and who is the object in the sentence. This is all about the game of Rafa, Nasab and Jar, game of Arab in Arabic language. So we should have to know how the way we can see the Arab in terms of understanding the subject and object. All right, this is Rafa, doer of the act, and इसके मैंने आपको मुख्तलिफ नाम बताए थे, मरफू एंड दम्मा, पेश. 2 पेश आती हैं तो वो तनवीन हो जाता है. फिर ऑब्जेक्ट है. अच्छा, ये जो रफा है इसका साउंड क्या होता है? इसका साउंड ऊ का होता है. क्या होता है? जी ऊ का साउंड होता है. इसका आ का साउंड होता है और इसका ई का साउंड होता है. ठीक है. Like we have some examples. A teacher entered the classroom. A teacher entered the classroom. So can you tell me about what is Rafa and what is Nasab and what is Jar? टीचर रफा, क्लासरूम इज, क्लासरूम जो है फता,
इसमें जड़ तो नहीं है। What is teacher? Like you have to tell me who is the doer and who is the being done to. सब्जेक्ट कौन होता है जो काम कर रहा होता है, और ऑब्जेक्ट कौन होता है जिसपे काम हो रहा होता है. So how would you recognize? Our teacher entered the classroom. टीचर क्लास में दाखिल हुई. टीचर रफा रफा होगी ना। Exactly. टीचर का Teacher is, साउंड हो गया है। yes, teacher is Rafa and classroom is नसब। perfect. And classroom is Nasab. And entered is शायद। Fail. Classroom. Yeah. ठीक है, ये हो गया रफा. टीचर. सुमेरा, आपको समझ आ रहा है? जी जी. देखिए, मैं खाना पका रही हूँ. आई एम कुकिंग द फूड. तो जो खाना पकाने वाला है वो काम कर रहा है ना, वो डूअर है ना. तो वो क्या होगा? रफा. और मैं क्या कर रही हूँ? खाना पका रही हूँ. खाने को पकाया जा रहा है ना, तो खाना क्या होगा? ऑब्जेक्ट. और पकाने को फेल हम्म, कहते हैं, वर्ब एक्शन हो रहा है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जी Like for instance, जी जी। I'm cooking. I am cooking the food. तो अब आप मुझे बताएं इसमें रफा नसब और वर्ब क्या है? आई जो आई है रफा वो है रफा तो। होगी. जी। आई रफा है. बिकॉज आई एम द वन हु इज कुकिंग द फूड. कुकिंग. आई एम सब्जेक्ट. डूअर. जी. व्हाट इज कुकिंग? कुकिंग. कुकिंग. Yes, कुकिंग फेल है. जर है. देर. फेल है. वर्ब है ना, एक्शन हो रहा है. कुकिंग इज हैपनिंग एंड फूड इज फूड इज द ऑब्जेक्ट. थिंग विच हैव बीइंग डन टू. फूड क्या है? जिसपे काम हो रहा है. ऑब्जेक्ट है ये. मैं कुकिंग कर रही हूँ, बट क्या कुकिंग कर रही हूँ? फूड. मैं सब्जेक्ट हूँ जी. और फूड क्या है? ऑब्जेक्ट है. लाइक a student of his was sleeping soundly. यानी उसका स्टूडेंट जो है वो सो रहा था, तेज आवाज में सो रहा था. अब यहाँ पे मुझे बताएं. स्टूडेंट रफा है। और स्टूडेंट रफा है, ठीक है. का स्टूडेंट पूरा होगा या फिर सिर्फ स्टूडेंट। और ऑफ के बाद है जो वर्ड आ रहा, ऑफ आ हर्फ है तो स्टूडेंट. उसके बाद आ क्या होगा। स्टूडेंट कंप्लीट वो होगा. रफा. नहीं, ऑफ है ना। ऑफ। ऑफ ऑफ तो के जर बाद है. हिज है तो क्या होगा। एग्जैक्टली. वेट वेट वेट. और देखें, उसका स्टूडेंट ना. तो हाँ, अब बताएं हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे. अ स्टूडेंट ऑफ हिज. तो स्टूडेंट हमारा रफा है और ऑफ देखें, जी अ ऑफ के स्टूडेंट ऑफ बाद जो। हिज. उसका स्टूडेंट आ रहा है, तो ये हिज जो है ये यहाँ पे जर जर के तौर पे आ रहा है. जी। ओके। ठीक है. यानी हम इसको ये कसरा वाला वर्ड कहेंगे। जब हम इस पर भी अरेबिक में लिखेंगे तो जेर के साथ लिखेंगे। अभी हम अरेबिक की प्रैक्टिस के लिए आएंगे ना, तो उसके उसमें अभी हमारा जो हमारी क्लैरिटी है ये होनी चाहिए. एग्जैक्टली जर जर के बाद वाला जो वर्ड होता है ना, उसके नीचे कसरा आता है. ठीक है. जी तो ये हम जब अभी आते हैं ना तो देखते हैं इसके बाद. अच्छा, वॉज स्लीपिंग. तो ये क्या हो गया? ये वर्ब हो गया. जी। साउंडली क्या है? इसम. ठीक है. हम्म, हमने अभी रफा और जी। नसब देखना है सिर्फ. तो एक सेकेंड. यस. नसब क्या है ये बताएं आप. नसब नहीं है इसमें। है. अगर बेड वगैरह लिखा होता ऑन द बेड या ऑन द फ्लोर तो फिर हम कहते हैं नसब है। देखें, अ, उसका स्टूडेंट सो रहा है तेज आवाज में. ठीक है. आप सोचें. जी। साउंडली है क्या ऑब्जेक्ट। साउंडली नसब है.
ओके। तेज आवाज में सो रहा है। हम्म। स्लीपिंग हमारे पास फेल है। साउंडली यहाँ पर हमारे पास क्या है? नसब है। आ टीचर थ्रू अ पेंसिल। टीचर ने पेंसिल फेंक दी। टीचर क्या है? रफा। सब्जेक्ट है रफा, ना। एंड थ्रू इज फेल। फेल, एंड पेंसिल नसब, पेंसिल नसब। क्या फेंकी उसने? पेंसिल फेंकी। द टीचर्स स्टूडेंट वोक अप सडनली। अब देखिए यहाँ पर था अ स्टूडेंट ऑफ हिज, तो यहाँ पे हिज जर आ गया क्योंकि उसका स्टूडेंट की बात हो रही थी। अब यहाँ पे क्या है? द टीचर्स स्टूडेंट। यहाँ पे जर क्या है? टीचर। एग्जैक्टली exactly. टीचर्स जो है ये हरफे जर है, और स्टूडेंट रफा है। नसब क्या है? सडनली। वो का स्टूडेंट क्या जो है? है वो आ गया जी, सडनली, एग्जैक्टली। टीचर्स क्या है? सडनली नसब है। टीचर क्या है? टीचर जो है वो क्या है जर बताएं है। जरा। जर है। टीचर, टीचर क्या है? जर है। स्टूडेंट क्या है? रफा है। और सडनली नसब कैसे? देखिए ये इसमें इसकी बात हो रही है द टीचर्स स्टूडेंट। टीचर का स्टूडेंट अचानक से उठ गया। अब उठ गया क्या है? फेल। और काम किस पे हुआ? अचानक से। तो ये थोड़ी क्रूशल चीजें हैं, ये हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह मैं ये ड्रिल आपसे शेयर कर दूंगी। डिटरमिन वेदर द वर्ड below are ism, fail or harf. We invited guests for dinner. They arrived early. I told my son to give them fruits and drinks, and I put the chicken in the oven. Hurriedly, he dropped the tray on the white carpet, and the drinks spilled. Guests are coming again today. I will remind him to carry the tray केयरफुली दिस टाइम। ये मैं आपको सेंड कर दूंगी। आप लोगों का ये वर्क होगा, होमवर्क, ये आपने करना है ताकि हम कल इसको क्लास में डिस्कस कर सकें। अब हम आ जाते हैं रफा के स्टेटस पे। देखें अभी मैंने आपको क्लियरली बताया था कि रफा क्या होता है। द डूअर, द डूअर इज द वन हु कैरीज आउट द एक्शन। टेक अ लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स। आई एट टू मच चॉकलेट। अब इसमें आप बताएं, आई एट टू मच चॉकलेट में हम रफा कैसे ढूंढेंगे? आई है। रफा। रफा। आई। एग्जैक्टली exactly. आई रफा है। और सब्जेक्ट एट क्या है? फेल है। ये नसब है। चॉकलेट नसब है। ठीक है। बाकी की जो रेस्ट ऑफ द चीजें बचती हैं वो जर कहलाती है। ठीक है। उसके बाद द एक्शन हेयर इज एट, यहाँ लिखा हुआ भी है नीचे, इन्होंने वो दी हुई है। नाउ आस्क योर सेल्फ हु इट वॉज हु ईट। इट इज द स्पीकर आई। हु डिड द एक्शन इन दिस सेंटेंस? आई इज द डूअर। लाइक अभी ये सेशन खत्म हो जाए तो हम दूसरा सेशन जो है ना उसके अंदर हम अरबिक की ड्रिल स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तो उसके अंदर आप इजीली रिकग्नाइज कर सकेंगे कि किस तरह से हमने चीज़ों को देखना है। अभी आप मुझे ये बताएं, सो फार समझ में आई ये चीज़ें? कोई जी, कंफ्यूजन? जी। थोड़ा है, जर के अंदर है थोड़ा सा, लेकिन वो हो जाएगा क्लियर विद टाइम जब हम पहुंचेंगे इसके ऊपर प्रॉपर। लाइक फॉर ओवरऑल क्लियर। ओवरऑल क्लियर है, क्लैरिटी है। जी। जी। ओके, नीचे वाला सेंटेंस पढ़ें जैनब। द डेंटिस्ट माय टूथ इज एकिंग। ये वाला। जी, माई टूथ इज एकिंग। माय टूथ इज एकिंग। एकिंग इज फेल, तो सबने सेपरेट कर दिया। इज हर्फ हो गया। माय टूथ इज, ये रफा है, मतलब पूरा ही रफा होगा ना, मेरा दांत।
दर्द तो उसमें हो रहा है ना। तो अब आप मुझे ये बताएं, रफा क्या है? टूथ। या एग्जैक्टली, माई, आई ट्रूथ थिंक। इज, हाँ, माई, ट्रूथ इज सॉरी। डूअर, यस, ट्रूथ इज डूअर। ओके, माई ट्रूथ इज हाँ ओके। एकिंग, या ट्रूथ यहाँ पर क्या है? रफा है, डूअर है। इसी तरह द डेंटिस्ट गेव मी अ फिलिंग, इसमें क्या है? डेंटिस्ट क्या है? रफा है, ठीक है। और नसब क्या है? फीलिंग। डेंटिस्ट तो डूअर है ना। जी। यहाँ इन्होंने सिर्फ रफा ही की बात की है। अगर हम कहें कि डेंटिस्ट ने मुझे फिलिंग दी, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? नसब क्या होगा? नसब फीलिंग होगा। एग्जैक्टली, परफेक्ट। अब फिर मी क्या इसमें, होगा इसके अंदर? जी, इस जुमले में मी क्या होगा? द डेंटिस्ट गेव मी अ मी। फिलिंग, डेंटिस्ट ने मुझे फिलिंग दी, ठीक है। तो इसमें जी तो मी, हाँ, मी ऑब्जेक्ट ही होगा। और फिलिंग, देखिए, मी, मुझे उसने फिलिंग दी, तो मी ही ऑब्जेक्ट होगा। उसको वो मतलब समझे, पूरा ही उसके अंदर आ जाएगा। द डेंटिस्ट गेव मी अ फिलिंग, डेंट, यहाँ पर इन्होंने सेंटेंस को उस तरीके से सिर्फ मेंशन किया है कि सिर्फ ये रफा ही के ऊपर बात कर रहे हैं। मगर जहाँ तक अगर हम समझने की कोशिश करें, तो डेंटिस्ट ने मुझे फिलिंग दी, यानी डेंटिस्ट करने वाला है और मुझ पर हो रहा है काम, ठीक है। मी और फीलिंग तीनों आई थिंक मतलब ये फिलिंग यहाँ मी पर ना, फीलिंग है ना, वो फिलिंग यहाँ दोनों पर चीजें इसम है, object है। फिलिंग यहाँ पर इसम है, और मी यहाँ पर नसब है, क्योंकि मुझ पे काम हो रहा है। समझ रही है बात? इस पूरे को हम कह सकते हैं कि ये नसब है। मेरे ख्याल नहीं, आई डोंट थिंक, पूरे को नहीं कह सकते। द डेंटिस्ट गेव मी, डेंटिस्ट ने मुझे दी, क्या दी? फिलिंग। तो फिलिंग जो है ये तो इसको इसम हम में आ सिर्फ रहा है, इसम में आ रहा है, क्योंकि ये डेंटिस्ट हो गया सब्जेक्ट, मी हो गया ऑब्जेक्ट, और फिलिंग जो है वो इसम में आ रहा है, गिव हो गया फेल, ठीक है। जी। एनीवेज ये इसको एक सेकेंड, अब हम अरबिक की तरफ चलते हैं। आप लोग सेशन जो है ना वो लीव करके दोबारा ज्वाइन करें, मैं नया लिंक शेयर कर रही हूँ। हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं अरबिक।